Good morning students, this is a computer class and in this class we will continue with our exercises. In the previous classes we have read the whole chapter, now we will continue with the exercises. Okay? Last class तक हम लोगों ने पूरा chapter read कर लिया था. अब जो है हम लोग इसकी exercises and question answers करते हैं. Okay? सबसे पहले check point. Dash is a system software. It manages the resources of a computer system and makes a computer easy to use. So OS is a system software. Okay. Microsoft Windows is a Dash user interface operating system, which graphical user interface. Dash represent physical and tangible components of the computer. Which represent physical and tangible components of a computer? Hardware. Next is what is meant by GUI. Name a popular GUI. What is meant by GUI? Graphical user interface. ये आप यहाँ पे लिखेंगे. Name a popular GUI. एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर GUI कौन सा है? MS Windows. Name operating system which are multi-user as well as multi-processing operating system. इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताने हैं जो मल्टी यूज़र्स भी हैं और मल्टी प्रोसेसिंग भी हैं. तो हमारे कौन कौन से हो गए? लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़ NT, XP, विस्ता एंड विंडोज़ 7, 8 एंड 10. ओके, तो ये सारे हमारे ऐसे प्रोसेसर हैं जो मल्टी यूज़र भी हैं और मल्टी प्रोसेसिंग भी है. ओके, ये आप अपनी बुक में करेंगे. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या होगा. मैं आपको क्वेश्चंस जो है बुक में मार्क करवाऊंगी, आपको फिर वो क्वेश्चंस जो अपने कॉपी में करने होंगे. ओके, और कॉपी में करके आपको मुझे सेंड करने होंगे और देन फिर आप लर्न करने होंगे. ओके, सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है? हमने यहाँ पे इसके फंक्शंस एंड फीचर्स पढ़े थे कि हमारा क्या हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हेल्प करता है. तो यही हमारे सारे पर्पस हैं इसका कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है. तो फर्स्ट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो इसमें आप कहाँ से लिखेंगे? द ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से मार्क करिएगा. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग और रनिंग वेरियस प्रोग्राम्स, वेदर यूज़र प्रोग्राम्स और सिस्टम प्रोग्राम्स. ओके, यहाँ तक. देन हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस. ये the operating system is responsible for handling various types of inputs and various types of output in the appropriate manner. Till here this one. This is your answer number 1. पेज नंबर 4. आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 4 लिख लीजिएगा. ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट. Manipulation of file systems. This task involves the making of decision regarding the storage of files. That is, where and how a particular file is to be stored. Okay. Next is error detection and handling. The operating system is also responsible for detecting any type of error that occurs and then properly handling it. सी, यहाँ पे आपके जो हैं 7 पॉइंट्स गिवन है, आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय CUI. गिव एग्जांपल्स. CUI क्या होता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. अब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या बताना है हमें. सी, इन द अर्लियर सिस्टम्स computer user used to interact with computer through commands which were to be typed through keyboard. As much of character typing or command typing was involved in it, this interface was known as command user interface or character user interface. Okay, this will be your answer number 2. And for examples you will take these ones. These are your examples.
टाइप फाइल नेम, कॉपी फाइल नेम। ओके, अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बाद में पूछ सकती हैं। ओके, ये आपका है पेज नंबर 6 पे। नाउ नेक्स्ट, what is an operating system, how it is useful as interpreter। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये इंटरप्रेटर की तरीके से यूज़ करता है। सी what is an operating system here। An operating system is a program which acts as an interface between the user and the hardware। Okay, this will be your answer number 3। okay, it is on page number 2। आप यहाँ पे पेज नंबर 2 लिख देंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन CUI एंड GUI। ओके, अब हमें CUI GUI में डिफ्रेंशिएट करना है। सो ये है आपका पेज नंबर 6 पे। CUI का आप सेम लिखेंगे जो आपने आंसर नंबर 2 में लिखा था, यहाँ पे आंसर नंबर 4 भी लिख दीजिए। एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप लिखेंगे over the time it was realized that merging up commands and then typing them was becoming a hindrance for computer users, as most people were finding it very difficult to it. Thus a new interface was originated which emphasized more upon knowing what is required by one or more clicks rather than the typing of commands. This interface was more graphic oriented and was known as graphical user interface। See, आप यहाँ से लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक साइड पे पेज के, और यहाँ पे ये लिखेंगे। देन आप नेक्स्ट पार्ट में GUI लिखेंगे। जैसे ये आपका कॉपी का पेज है, आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा स्केल से। यहाँ पे आप लिखेंगे CUI, यहाँ पे GUI। तो ये जितना पोर्शन है ये आप CUI में लिखेंगे, और ये वाला जो जितना पोर्शन है ये वाला ये आप GUI में लिखेंगे। ओके, सो आप यहाँ से लिखेंगे न्यू से यहाँ। Okay, it is on page number 6। Now next, question number 5। Name some operating systems that are multi-user, multitasking and multi-threading operating system। अब हमें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताने हैं जो मल्टी यूज़र हो, मल्टीटास्किंग हो और मल्टी थ्रेडिंग हो। तो ये आपका है पेज नंबर 7 and 8 में। ओके, सबसे पहले मल्टी यूज़र आप हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेटा मल्टी यूज़र, और फिर आप ये सब लिख देंगे लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज़ NT, XP, 7, 8, 10 एंड विंडोज़ विस्टा। ये आपका हो गया आंसर नंबर 5। और अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी टास्किंग हमारे कौन से हो गए? यूनिक्स, विंडोज़ 7, 8, 10, NT, XP, विस्टा एंड विंडोज़ लाइनेक्स। ओके, अब मल्टी थ्रेडिंग ये वाले हो गए लाइनेक्स, XP, विस्टा, यूनिक्स, विंडोज़ 7, 8, 10। आंसर नंबर 5। ओके, ना नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसकी फुल फॉर्म्स लिखनी है। तो CUI की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। GUI की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी यूज़र एज वेल एज मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम गिवन है। आपको इसमें से बताना है कि ऐसे कौन से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूज़र भी है और मल्टी टास्किंग है, मतलब वो दोनों हैं। तो हमारे कौन कौन से होंगे? विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, लाइनेक्स एंड यूनिक्स। ये सब जो है हमारे मल्टी यूज़र भी हैं और मल्टी टास्किंग भी हैं। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉस विंडोज़ 3.11 है, ये दोनों हमारे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सो हमने पूरा चैप्टर रीड करा, हमने एक्सरसाइजेस करी। ये एक्सरसाइजेस आप बुक में करेंगे और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछेंगे। और ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको लर्न करेंगे प्रॉपरली। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।